So the today's topic is the flow control. Now I am going to share the screen. Okay, I think the screen is visible to everyone. Okay, let's start with the topic. The flow control. वैसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि what is the meaning of flow control. Uh, Flow control coordinates the amount of data that can be sent before receiving acknowledgement. It is one of the most important function of data link layer. Flow control is a set of procedures that tells the sender how much data it can transmit before it must wait for an acknowledgement from the receiver. Receiver has a limited speed at which it can process incoming data and limited amount of memory in which to store incoming data. Receiver must inform the sender before the limits are reached and request that the transmitter to send fewer frames or stop temporarily. Since since the rate of processing is often slower than the rate of transmission, receiver has a block of memory for storing incoming data until they are processed. So what it means the flow control is to control the flow of data. जितना भी डेटा सेंडर सेंड कर देता है और जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती उस डेटा को होल्ड करने के लिए we required some strategy and that is called the flow control. Means suppose मैंने तुम लोगों को मैसेज सेंड किया, you send me the acknowledgement that the message is received. After that I am able to send the next message. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फ्लो कंट्रोल हो जाएगा. कैसे? मैंने एक मैसेज सेंड किया, तुम्हें मैसेज मिला, यू सेंड मी द एक्नॉलेजमेंट. व्हाट इट मीन्स, यू एक्नॉलेज मी कि मैसेज मिल गया हुआ है. नाउ अगेन आई एम सेंडिंग सम मैसेज एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, देन अगेन सेंड फॉर न्यू मैसेज. अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं होता तो कंटिन्यूसली आई सेंड यू द 10 मैसेजेस. सपोज ओनली द 4 मैसेजेस कैन बी रिसीव्ड बाय योर साइड. So what will happen if the no ACK is there? ACK means no acknowledgement is there. So what can happen? From my side, I send you the 10 messages. At your side, you only receive the 4 messages. Where the remaining 6 messages? They are the lost. To control these flow, we require some mechanisms. We require some methods. Clear? And the mechanisms for the flow control is, the first is stop and wait. Second, go back and ARQ. Third, selective repeat ARQ. ARQ means automatic request, automatic, just wait for a minute. कौन enter कर रहा है अभी? Wait. Okay, wait. Sharanjeet and Jagdeep. Okay, okay, good. ARQ means automatic request, automatic repeat request. Clear? Automatic repeat request. Now let's start discussing the first, that is stop and wait. पहले हम लोग जो राइट साइड पे लिखा है उसको समझ लेते हैं, then we go for the diagram. Sender keeps a copy of the last frame until it receives an acknowledgement. जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तब तक हम पिछले मैसेज की कॉपी को संभाल के रखेंगे, इफ वी आर द सेंडर्स. क्लियर? फॉर आइडेंटिफिकेशन, both data frames and acknowledgement frames are numbered alternatively 0 and 1. उन दोनों को आपस में कंफर्म करने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, we give the number to the frame and the acknowledgement opposite. If the frame 0 is there, acknowledgement 1 receive. If the frame 1 is there, acknowledgement 0 receive. Clear? Sender has a control variable that holds the number of recent sent frames. कंट्रोल वेरिएबल मींस द एस वेरिएबल. जो क्या करेगा वो भी डायग्राम में समझाऊंगा. वो क्या करता है, जैसे सपोज आई एम द सेंडर, मैंने तुम्हें एक मैसेज सेंड कर दिया, फिर कंट्रोल वेरिएबल के थ्रू मैं वेट करूंगा जब तक उस फ्रेम की, जो तुम्हें फ्रेम सेंड किया है, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट मुझे वापस नहीं आती. क्लियर? रिसीवर हैज अ कंट्रोल वेरिएबल दैट होल्ड्स द नंबर ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड 0 और 1. नेक्स्ट फ्रेम मींस कौन सा नेक्स्ट फ्रेम उसने अब सेंड करना है,
or receiver always, in this case, receiver always send the next frame only in the mean of acknowledgement, because receiver acknowledgement ही send करेगा turn by turn, senders के बाद data होगा send करने के लिए. Clear? Sender starts a timer when it sends a frame. It starts the timer when it sends the frame. वही जो तुम्हें बताया पहले, सेशन क्रिएट्स होते हैं, सेशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा. If an acknowledgement is not received within an allocated time period, the sender assumes that frame was lost or damaged and resend it. कहता अब इसमें हमने प्री डिफाइंड टाइम रखा होता है. सपोज वी गिव द टाइम ऑफ 2 मिनट, आई सेंड यू द फ्रेम and I am waiting for the 2 minutes. In between these 2 minutes, if the acknowledgement of that particular frame is received, then it is okay. Otherwise, after the completion of 2 minutes, I again send the same frame. मैं assume कर लूंगा कि तुम्हें वो frame नहीं मिला, तभी मेरे को acknowledgement नहीं आई, तो again I send that particular frame towards the receiver side. Clear? Sender receiver sends only positive ACK if the frame is intact. Receiver का क्या काम है? It only sends the acknowledgement whenever a frame is received at the receiver side. ACK number always defines the number of the next expected frame. Normally ACK का number वो होता है जो next frame वो उसने expect करना हो. Expect करने का मतलब है, वैसे example बताता हूँ. Suppose I am the sender, you are the receiver. मैंने तुम्हें 10 frames send करने हैं, तो मैं तुम्हें अगर 8 नंबर फ्रेम सेंड करूंगा तो तुम मेरे को 9 नंबर एक्नॉलेजमेंट सेंड करोगे. 9 नंबर एक्नॉलेजमेंट का मतलब है नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द फ्रेम 9, वन स्टेप फॉरवर्ड. क्लियर? अब डायग्राम, नाउ लुक एट द डायग्राम. इन द सेंडर साइड S0, at the time of S0 control variable, they send the frame 0. The frame 0 is received by the receiver at the R0 and it sends the acknowledgement 1. If the frame is 0, acknowledgement is 1. At the next time S1, frame 1 is sent, acknowledge 0 is sent by the receiver. So this is all about the stop and wait. Stop and wait का मतलब है स्टॉप हो जाना है सेंड करने के बाद और वेट करनी है until the acknowledgement is received. Clear? This is a simple one, stop and wait. Any question? Any question from your side in stop and wait? Okay, let's move further. Now the second is stop and wait ARQ, automatic repeat request आ गया अब इसमें. लॉस्ट ACK फ्रेम, लॉस्ट ACK जब एक्नॉलेजमेंट फ्रेम लॉस्ट हो जाएगा, इफ द ACK फ्रेम लॉस्ट हो जाए या जो सेंटर फ्रेम है वो लॉस्ट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा स्टॉप एंड वेट पे ये चलेगा, बट विद ARQ, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. क्लियर? अब इन दिस केस व्हेन अ रिसीवर receives a damaged frame, it discards it and keeps its value at R, and R is the control variable of receiver. वो उसको रिसीव नहीं करेगा. अगर कोई भी डैमेज्ड फ्रेम वो रिसीव करेगा तो वो उसको रिसीव ही नहीं करेगा. रिसीव नहीं किया तो व्हाट इट मींस, वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा. क्लियर? आफ्टर द टाइमर एट द टाइम एक्सपायर्स अनदर कॉपी ऑफ फ्रेम इज सेंड. तो जब टाइम कंज्यूम, जितना टाइम हम लोगों ने रखा हुआ है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम, सपोज मैंने तुम लोगों को मैसेज सेंड किया एंड यू रिसीव द डिस्कार्डेड फ्रेम, यू रिसीव द डैमेज्ड फ्रेम, तो तुम क्या करोगे? एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करोगे. मैं 2 मिनट वेट करूंगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, अगेन आई एम अगेन सेंडिंग दैट पर्टिकुलर फ्रेम टुवर्ड्स योर साइड. क्लियर? अब इसकी डायग्राम देखो. S0, frame 0 is sent, received by the R0 control variable. It sends the acknowledgement ACK1, and the next time they send the frame 1. फ्रेम 1 वो लॉस्ट हो गया या डैमेज्ड पोजीशन में रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर ने उसको रिसीव नहीं किया. अब S1 के ऑपोजिट देखो, टाइम आउट लिखा हुआ है. टाइम आउट मींस ये दिस साइड, कर्सर नजर आ रहा होगा तुम्हें. टाइम आउट मींस नाउ आई एम वेटिंग फ्रॉम दिस S1 टू दिस S1. पोजीशन जो S1 ही रही मेरी, बिकॉज S1 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आई. 2 मिनट वेट किया, अगेन द कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल लिमिट इज सेम. S1 sends the message and that frame is received by the receiver and then ACK 0 is sent. जब तुम्हें complete frame मिलेगा, then you send the acknowledgement and that acknowledgement is received by my side. This is stop and wait ARQ lost ACK frame. Clear? Any question in this?
Okay, let's move further. Now, the next is stop and wait lost ACK frame. Now, if the sender receives a damaged ACK, it discarded. उस पुराने वाले में क्या था, अगर डैमेज्ड फ्रेम रिसीव हुआ, इसमें क्या है, अगर डैमेज एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई. डैमेज एक्नॉलेजमेंट का मतलब है या डैमेज रिसीव हुई या नहीं रिसीव हुई. उस केस में सेंडर क्या करेगा, नेक्स्ट वाला फ्रेम नहीं सेंड करेगा जितना उसका टाइम आउट होगा, टाइम आउट के बाद सेंड करेगा. क्लियर. पहले सेंडर साइड पे था, अब रिसीवर साइड पे. ओनली द डिफरेंस इज दिस, if the sender receives a damaged ACK, it discard it. When the timer of the sender expires, the sender retransmit frame 1. Receiver has already received the frame 1 and expecting to receive the frame 0. Therefore, it discard the second copy of frame 1. Clear? अब पहले एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. सपोज मैंने तुम्हें मैसेज सेंड किया, यू रिसीव्स द मैसेज, तुमने उसकी एक्नॉलेजमेंट मेरे को भेजी, वो एक्नॉलेजमेंट मेरे को नहीं मिली. मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो मैं वही कुछ वो टाइम आउट तक मैं वेट करूंगा, मैं सेम फ्रेम दोबारा सेंड कर दूंगा. बट वो तुम्हें फ्रेम मिल चुका था बिकॉज तुमने तभी तो एक्नॉलेजमेंट भेजी थी. तो तुम क्या करोगे, यू आर एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट फ्रेम, बट मैं तुम्हें फिर पुराने वाला ही भेज रहा हूं. तो तुम क्या करोगे, तुम डिस्कार्ड कर दोगे इस फ्रेम को बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ कॉपी ऑफ दैट फ्रेम एंड यू अगेन सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस फ्रेम. तो तुम समझ जाओगे कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, तो तुम अगेन उसकी कॉपी सेंड कर दोगे. क्लियर. अब ये देखो, S0 फ्रेम 0 सेंड, एट दी R0 एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड, S1 फ्रेम 1 सेंड, मैंने फ्रेम सेंड कर दिया. R1 तुमने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तुम्हारी तरफ से एक्नॉलेजमेंट चली गई, मेरे को रिसीव नहीं हुई. तो तुम क्या कर रहे हो, अब तुम नया वाला फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट मैं टाइम आउट तक वेट करूंगा, मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, मैं अगेन मैसेज सेंड कर दूंगा. फिर जब तुम वो मैसेज रिसीव करोगे, अब ये येलो पार्ट देखो क्या लिखा है, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रेम 0 बट आई एम सेंडिंग द प्रीवियस वन बिकॉज मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली थी. सो फ्रेम 1 इज डिस्कार्डेड. व्हाई डिस्कार्डेड, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ कॉपी ऑफ फ्रेम 1. क्लियर. यस, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. Any issue in this? Any problem or any issue? Nothing? That's good. Now move further. Stop and wait delayed ACK frame. Delayed का मतलब है, अब इसमें क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम लॉस्ट नहीं हुआ, डिले हो गया, काफी लेट पहुंचा मेरे पास. क्लियर. अब समझते हैं पहले जो लिखा हुआ वो. The ACK acknowledgement can be delayed at the receiver or due to some problem. Clear. It is received after the time for frame 0 has expired. Clear. Sender retransmitted a copy of frame 0. However, R1 means receiver expected to see the frame 1. Receiver discard the duplicate frame 0. Sender receives 2 acknowledgement. It discarded the second acknowledgement. अब तुम्हें बताता हूं इसमें क्या होगा. इसमें सिर्फ डिले हो रहा है एक्नॉलेजमेंट का. नाउ लुक एट द डायग्राम. एट दिस साइड सेंडर S0, दे सेंड द फ्रेम 0 रिसीव्ड बाय यू. सपोज मैंने तुम्हें फ्रेम 0 सेंड किया, तुमने वो रिसीव कर लिया. अब क्या हुआ, तुमने जो एक्नॉलेजमेंट भेजी ये तुम्हारी वजह से या ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो डिले हो गई. अब डिले कितनी हो गई, टाइम आउट को क्रॉस कर गई. ये मेरा टाइम आउट था, ये लेफ्ट साइड पे S पे मेरा टाइम आउट खत्म होगा 2 मिनट का. तो मैंने क्या किया, अगेन 0 तुम्हें सेंड कर दिया फ्रेम. वो क्यों, बिकॉज मेरे को यही लगा कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तो तुमने फ्रेम नहीं रिसीव किया. आई सेंड द सेम फ्रेम 0 टूवर्ड्स यू, बट एट दैट टाइम यू आर एक्सपेक्टिंग द फ्रेम 1, क्योंकि तुमने 0 फ्रेम रिसीव कर लिया था, तुमने उसकी एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी थी, बट मेरे को लेट मिली. दैट टाइम तुम क्या करोगे, एक्सपेक्टिंग फ्रेम 1, फ्रेम 0 डिस्कार्डेड. तुम फ्रेम 1 एक्सपेक्ट कर रहे थे पर मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मैंने तुम्हें सेम फ्रेम भेज दिया, तुम लोग उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर दोगे बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अ कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम. क्लियर. नाउ एट द S1 जब मैंने नया फ्रेम सेंड करना था फ्रेम 1, तो सेम टाइम पे मेरे को क्या रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट 1. जब एक्नॉलेजमेंट 1 मेरे को रिसीव हो गई पहले वाले की जो स्टार्टिंग S0 पे भेजा था, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट मैं रख लूंगा. नया फ्रेम जो मैंने सेंड किया वो लॉस्ट हो गया इन बिटवीन द पाथ. अब जितना टाइम आउट मेरे पास था, जो दूसरी बार फ्रेम 0 भेजा था मैंने, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मेरे पास आ गई, लेकिन ऑलरेडी आई हैव
एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1 ऑफ फ्रेम 0, तो दूसरी वाली को डिस्कार्ड कर दूंगा मैं, पुरानी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई थी। क्लियर? तो टाइम आउट हुआ, देन फिर फ्रेम नंबर 1 मैंने तुम्हें सेंड किया, देन यू सेंड द एक्नॉलेजमेंट 0 टुवर्ड्स मी। क्लियर? एनी क्वेरी इन दिस? स्टॉप एंड वेट डिलेड एसी के फ्रेम, इसमें सिर्फ एक ही चीज होगी, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम डिले होगा, एक्नॉलेजमेंट डिले होगा, रिपीट कर रहा हूं। तो व्हाट इट मींस, एक्नॉलेजमेंट डिले होगी तो मैं सेंडर हूं, तो मैं क्या करूंगा, टाइम आउट के बाद अगेन वही फ्रेम तुम्हें सेंड कर दूंगा। जब दूसरी कॉपी तुम लोग उस फ्रेम की रिसीव करोगे, यू डिस्कार्ड द सिंगल कॉपी बट यू सेंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम। जब पहली एक्नॉलेजमेंट मैं रिसीव कर लूंगा, मैं अगला फ्रेम सेंड करूंगा, दूसरी बार सेम एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आएगी तो मैं भी उसको डिस्कार्ड करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉप एंड वेट डिलेड एसी के फ्रेम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? You can raise your hand or send the message. Nothing. Okay, that's good. Now the next is piggybacking. This is a different one. Piggybacking में क्या होगा? Suppose I am the sender, you are the receiver. Just wait for a minute. A message is there. Clear? Okay, that's good. Now the next is piggybacking. इसको थोड़ा ध्यान से समझना. In piggybacking, sender is also a receiver and receiver is also a sender. So what it means, at the same time मैं तुम्हें मैसेज सेंड कर रहा था, पहले तुम लोग रिसीव कर रहे थे, अब किसी टाइम पे तुम भी सेंड कर सकते हो, मैं भी रिसीव कर सकता हूं, बिकॉज नाउ मैं सेंडर भी हूं और रिसीवर भी हूं। सेम विद यू साइड, यू आर सेंडर एंड रिसीवर ऑल्सो एट द सेम टाइम। क्लियर? अ मेथड टू कंबाइन अ डेटा फ्रेम विद ACK. Station A and B both have data to send. Instead of sending separately, Station A sends a data frame that includes an acknowledgement. Station B does the same thing. Piggybacking saves the bandwidth. Now, अब है क्या, सेम टाइम पे मैंने डेटा सेंड करना है, तुमने रिसीव करना है, तुमने एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, मैंने एक्नॉलेजमेंट रिसीव करनी है, फिर तुमने डेटा सेंड करना है, मैंने रिसीव करना है, मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, तुमने एक्नॉलेजमेंट रिसीव करनी है। तो टू saves the bandwidth, a new method is there that is called piggybacking, in which the sender becomes the receiver and receiver becomes the sender. Now look at this side, sender, अब दोनों लिखे, S0 भी लिखा है, R0, बिकॉज एट द सेम टाइम ए और बी है ना, ए मैं हो गया, बी तुम लोग हो गए, एट द सेम टाइम मैं सेंडर भी हूँ और रिसीवर भी हूँ। सेंडर रिसीवर क्यों? बिकॉज एट S0 आई सेंड यू द फ्रेम 0, एट द सेम टाइम आई सेंड यू द एक्नॉलेजमेंट 0 ऑफ द प्रीवियस फ्रेम, जो फ्रेम 1 तुमने भेजा होगा मेरे को। एट द S0 एट योर साइड, एट द B फ्रेम 0 इज सेंड, ACK 1 इज सेंड। मीन्स सेम टाइम पे तुम फ्रेम भी सेंड करोगे, एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करोगे। फ्रेम कौन सा सेंड करोगे? जो डेटा सेंड करना है। एक्नॉलेजमेंट किसकी सेंड करोगे? जो डेटा रिसीव कर चुके हो। क्लियर? एनी इश्यू इन दिस? if this is clear, then we move further. If you have any query, just message. If no query is there, okay, no message is there, so we should move forward. Now this is all about the stop and wait, but there are some disadvantages of stop and wait. In stop and wait, at any point in time, there is only one frame that is sent and waiting to the acknowledged. पहले ऐसे ही होता था ना, मैंने सेंड कर दिया, तुम लोग के पास रिसीव हो गया, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तब तक मैं वेट करूंगा, मैं तब तक सेंड नहीं करूंगा। क्लियर? दिस इज नॉट अ गुड यूज ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने तुम्हें सेंड कर दिया, अब कब तक वेट करूंगा? अगर 2 मिनट का टाइम स्पाइस रखा, टाइम आउट रखा हो मैंने, तो 2 मिनट में वेट करूंगा। अगर 2 मिनट एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, मैं फिर अगला मैसेज, सेम वही पुराने वाला मैसेज तुम्हें सेंड करूंगा। टू improve efficiency, multiple frames should be in transition while waiting for ACK. कहते हैं इसको ओवरकम करने के लिए मल्टीपल फ्रेम्स सेंड कर दो, बाद में उनकी ACK की वेट करते रहो। फॉर दिस दे हैव द 2 protocols that are used in this concept, and they are called, the first one is go back and ARQ, second selective repeat ARQ. First is go back and ARQ, in which we can send up to W frames before worrying about ACKs. Means we are send more than 1 frames without worrying about the acknowledgements. We keep a copy of these frames until the acknowledgement arrive. एक चीज नहीं करनी पड़ेगी, सपोज मैंने 5 फ्रेम तुम्हें सेंड कर दिए, अब 5 की वेट करूंगा मैं, लेकिन वो 5 की 5 कॉपीज की
5 की 5 कॉपीज को अपने पास रखूंगा, तब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। जिसकी एक्नॉलेजमेंट आई जाएगी उस कॉपी को डिलीट करता जाऊंगा। डिलीट मतलब अपने एंड से कि वो तुम्हारे पास पहुंच गई। तो इस तरह मेरे को लग जाएगा पता कि मैंने 5 सेंड किए थे, 3 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, वो 3 डिलीट कर दो, जो डिलीट नहीं हुए वो अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो उन दोनों को दोबारा सेंड करना पड़ेगा। क्लियर? दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स एडिशनल फीचर्स टू बी एडेड to stop and wait ARQ. In this case, we enhance the stop and wait ARQ by adding some extra features. Clear? Go back and ARQ normal operation. अब ये है, ये the sender keeps track of the outstanding frames and updates the variable and windows at the ACK arrives. अब उनका ट्रैक रखेगा कौन कौन से सेंड कर दिए, जिसकी एक्नॉलेजमेंट आगे जाएगी वो उसको अगर फर्दर मूव करता जाएगा। अब दिस इज कॉल्ड द विंडो। विंडो मींस कि कितने फ्रेम्स इस टाइम करंटली मेरे पास हैं। सपोज आई हैव 7 फ्रेम्स टू सेंड, विंडो साइज कितना होगा 7, मेरे पास 7 फ्रेम्स हैं। अब सेंटर साइड पे देखो, एट द सेम टाइम द 3 फ्रेम्स दे आर इन द विंडो एंड दीज 3 फ्रेम्स आर 0 1 2। फ्रेम 0 इज सेंड एट द फर्स्ट टाइम, नाउ फ्रेम 1 इज सेंड, फ्रेम 2 इज सेंड, तीनों फ्रेम सेंड हो गए। नाउ एट द फ्रेम 0, जब 0 फ्रेम सेंड किया कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, फ्रेम 1 सेंड किया, एसी के 2 इज देयर। एसी के 2 का मतलब क्या है कि एसी के 2 के पहले वाले फ्रेम्स रिसीव हो गए हैं। कौन कौन से? 2 से पहले क्या आता है? 0 और 1। अब यहाँ पे विंडो साइज देखो, यहाँ पे 0 और 1 फिर व्हाइट हो गया, ये विंडो आगे मूव कर गई, मतलब ये दोनों मैंने विंडो से डिलीट कर दिए, इनकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है। किनकी पेंडिंग है? अब 2 की, 3 की, 0 की। अब 3 फिर आ गए, यहाँ पे 3 आ गया तो एक आगे मूव कर गया, 3 का मतलब है 2 रिसीव हो गया, 2 रिसीव हो गया तो विंडो में क्या आ गया? 301। इसी तरह से 1 बाय 1 विंडो आगे मूव करती जाएगी। जो विंडो से बाहर निकलते जाएंगे मतलब उनकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है। क्लियर? ये सेंटर साइड है। सेंटर साइड में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो अभी। ये विंडो समझ आ गई कैसे आगे मूव कर रही है? ओके, नाउ कम टू द रिसीवर साइड विंडो। रिसीवर साइड पे क्या है? जिसकी एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी विंडो उससे आगे मूव कर जाएगी। फ्रेम 0 रिसीव हुआ, 0 पे विंडो आ गई। एसी के 2 सेंड की, मतलब 0 और 1 रिसीव हो गए, 1 पे विंडो आ गई। एसी के 3 भेजा, विंडो 0 पे मूव कर गई। फ्रेम 3 आया, यहाँ पे फ्रेम एसी के 3 भेजेंगे, विंडो 3 पे मूव कर गई। स्टेप बाय स्टेप रिसीवर की विंडो आगे जाती जाएगी। कौन से बिट्स जो इस विंडो से निकलते जाएंगे वो हैं जिनकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी होगी रिसीवर साइड पे, और सेंडर साइड पे वो बाहर जाते जाएंगे। मेरी सपोज आई एम द सेंटर, मेरी विंडो से वो बाहर जाते जाएंगे जिनकी एक्नॉलेजमेंट मैं रिसीव करता जाऊंगा। तुम्हारी, यू आर द रिसीवर, तुम्हारी विंडो से वो बाहर जाता जाएगा जिसकी एक्नॉलेजमेंट तुम लोग सेंड करते जाओगे। सो इस तरह से विंडो आगे मूव कर जाएगी और सारे फ्रेम्स सेंड हो जाएंगे और हमें लग जाएगा पता कि सारे रिसीव भी हो गए। क्लियर? दिस इज अ नॉर्मल ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन। गो बैक एंड ARQ लॉस्ट फ्रेम्स। अगर फ्रेम लॉस्ट कर जाए तो कहता फ्रेम 2 इज लॉस्ट। वो डायग्राम छोड़ दो भी, यहाँ पे पढ़ो, बाद में पढ़ते हैं। When the receiver receives frame 3, it discarded frame 3 as it is expecting frame 2, but frame 2 तो डिस्कार्ड हो गया था, तो वो तीसरे को भी रिसीव नहीं करेगा, उसको 2 चाहिए पहले, बिकॉज विंडोज बनी हुई है, विंडो में 2 आएगा, उसके बाद ही 3 की वैल्यू आएगी। आफ्टर द टाइमर फॉर फ्रेम 2 expires at the sender side, the sender sends frame 2 and 3 go back to the 2, तो अगेन उसको रीट्रांसमिट करेगा। क्लियर? अब आ जाओ डायग्राम पे। विंडो हमने देख लिया कैसे मूव करेगी। सेंटर साइड पे विंडो पे क्या है? 0 1 2। रिसीवर साइड पे 0 फ्रेम सेंड किया, फिर फ्रेम 1 सेंड किया। जब एक्नॉलेजमेंट 2 सेंड की, आर की देखो एक्नॉलेजमेंट 2 सेंड हुई, इसका मतलब है 1 2 से पहले वाले एक्नॉलेजमेंट सेंड हो गई, मेरे को रिसीव हो गए। 2 से पहले क्या था? 0 1 वाइट हो गए, यहाँ पे ये देखो 0 1 वाइट हो गए, विंडो कहाँ मूव कर गई? एक आ गए, विंडो में आ गया 2 3 0। अगर एसी के 2 सेंड की तो फ्रेम 1 इज रिसीव्ड, इसलिए फ्रेम 1 यहाँ पे विंडो पे आ गया, रिसीवर की पिंक विंडो पे। क्लियर? नेक्स्ट, उसने फ्रेम 2 सेंड किया, लॉस्ट हो गया। उसने फ्रेम 3 सेंड किया, रिसीवर साइड पे देखो फ्रेम 3 इज डिस्कार्डेड, नॉट इन द विंडो, बिकॉज राइट नाउ द फ्रेम 2 इज इन द विंडो। पहले 2 रिसीव होगा, 2 के आगे बाद वो 3 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब 3 से पुराने रिसीव हो गए, देन वो आगे मूव करेगा। पुराने वाला मूव ही नहीं कर सकता, बिकॉज अब इसमें एक्नॉलेजमेंट का चक्कर नहीं रहा। इसमें चक्कर क्या रहा रिसीवर साइड पे कि जो विंडो पे करंट वैल्यू होगी वो फ्रेम रिसीव होगा, तभी विंडो आगे मूव करेगी, अदरवाइज विंडो वहीं पे स्टॉप कर जाएगी। क्लियर?
यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एनी इशू, एनी क्वेरी, सेंड द मैसेज, वी कैन डिस्कस दैट. Okay, that's good. This is clear to everyone. Now, next is selective repeat ARQ. And in here we have the two windows, वही sender and the receiver window. पहले पढ़ लेते हैं. Go back and ARQ simplifies the process at the receiver side. Receiver side. Receiver only keeps the track of only one variable, and there is no need to buffer out of order frames. They are simply discarded. जैसे पीछे भी हम लोग देखते रहे, उसने अपनी विंडो देखी, विंडो में 2 था, फ्रेम नंबर 3 रिसीव हुआ, उसने डिस्कार्ड कर दिया. उसको कोई लेना देना नहीं, जब तक फ्रेम 2 रिसीव नहीं होता वो आगे काम नहीं करेगा. विंडो में कौन सी वैल्यू थी? 2, तो वो 2 की वैल्यू की वेट करेगा. However, go back and ARQ protocol is insufficient for noisy link. In bandwidth insufficient and slows down the transmission. In selective repeat ARQ, only the damaged frame is resent. अब इसमें क्या होता था, जो फ्रेम डैमेज हुआ, जिसके एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, सिर्फ उसी को सेंड करेंगे. मोर बैंडविथ एफिशिएंट बट मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग एट रिसीवर. It defines a negative ACK to report the sequence number of the damaged frame before the time expires. The new concept is there. जो डैमेज हो जाएगा फ्रेम, उसकी नेगेटिव, जो फ्रेम डैमेज हो गया, मैंने सेंड किया, डैमेज हो गया, तुम्हें नहीं मिला, तुम उसकी नेगेटिव ACK भेज दोगे, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दोगे कि भाई ये तो रिसीव ही नहीं हुआ हमारे पास. क्लियर? अब ये देखो, सेंटर साइड की विंडो देखो, 3 कौन सा बाहर निकला? फ्रेम एक्नॉलेज. जिसकी एक्नॉलेजमेंट आती जाएगी वो बाहर निकलता जाएगा. ये सेंटर्स विंडो, SF फर्स्ट, अनदर एंड L लास्ट, जो विंडो में होंगे, ये जो विंडो कंटेन करेगी फर्स्ट और लास्ट को सेल्स में. फ्रेम्स वेटिंग टू बी सेंड, ये येलो वाले सेंटर साइड पे अभी सेंड करने हैं. विंडो कब आगे जाएगी? जब 01 सेंड कर दूंगा और 01 की रिसीविंग आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली विंडो में क्या चला जाएगा? 2 और 3. क्लियर? सेम इन द केस ऑफ रिसीवर साइड, 3 विंडो से बाहर है, फ्रेम रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज. ये फ्रेम रिसीव हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी तुमने, उसको विंडो से बाहर निकाल दिया, उसका काम खत्म. 01 जो करंटली अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, फ्रेम्स दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, 2 2 3 01 जो भी एक्सेप्ट ही नहीं हुए. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. Frames 0 and 1 are accepted when received because they are in the range specified by the receiver window. Same for the frame 3. Receivers send a negative NAC2, negative acknowledgement 2, to show that frame 2 has not been received, and then sender resend only the frame 2 and it is accepted as it is in the range of the window. जो फ्रेम तुम्हें रिसीव हो जाएगा उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दोगे, उसको विंडो से आगे निकाल दोगे. जो फ्रेम तुम्हें रिसीव नहीं होगा, वी ओनली सेंड द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट फ्रेम. और जिसके तुम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजोगे वो मैं रिसीव करूंगा, मैं उसी फ्रेम को रीसेंड करूंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम. 0 and 1 इन द फ्रेम, इन द विंडो, सॉरी, फ्रेम 0 सेंड, फ्रेम 1 सेंड. 0 और 1 था, 1 सेंड हो गया. यू सेंड द एक्नॉलेजमेंट 2. व्हाट इट मींस? 0 and 1 इज रिसीव्ड. क्लियर? नाउ यू सेंड, नाउ द 0 1 रिसीव्ड, तो उन दोनों को तुमने विंडो से बाहर निकाल दिया, 2 3 को विंडो में ले लिया. यू सेंड द फ्रेम 2, यू सेंड द फ्रेम 3, बट 2 इज लॉस्ट. 2 थे विंडो में, दोनों सेंड कर दिए, 2 लॉस्ट कर गया. अब मेरे पास क्या था? मेरे पास, मैंने देखा मेरे पास कौन सा फ्रेम आया? 2 नहीं आया, 3 आ गया. 2 और 3 विंडो में था, तो मैंने क्या किया? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ 2 भेज दी कि भाई तुमने 2 3 भेजा था, 3 इज रिसीव्ड फ्रॉम माई साइड, 2 इज नॉट रिसीव्ड. एट द सेम टाइम जब तुम मुझे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो आई सिंपली रीसेंड द फ्रेम नंबर 2. क्लियर? एनी क्वेरी अप टू दिस? Any question, any query? Okay. The last is, just wait for a minute, a message has arrived. The message is clear. Okay. Okay, that's good. Okay, the last is selective repeat ARQ sender window size. Sender window size ना depends upon the sender's window. Normally तुम लोगों को बता देता हूँ, विंडो साइज उतनी होगी जितने फ्रेम्स हम लोग एक टाइम पे सेंड करेंगे. क्लियर? अभी यही पढ़ेंगे. साइज ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर विंडोज मस्ट बी एट मोस्ट 1/2 of 2 raised to power m. If the m is 2,
विंडो साइज इज 2 raised to power m divided by 2, ऑटोमेटिकली द वैल्यू इज 2, जो तुम स्टार्टिंग में बता दिया. Figure compares the window size of 2 with a window size of 3. Now senders, they have a window size of 2, and at the second part, at the sender they have the window size of 3. Now we are comparing both the examples. Window size is 3 and all ACKs are lost. Sender sends duplicate of the frame of 0. Window of the receiver expected to the frame 0. So accepts frame 0 as its first frame of the next cycle. That is an error. अब ये समझा देता हूँ मैं कैसे. पहली डायग्राम देखो, 0 1 विंडो में था सेंडर की, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है. फ्रेम 0 सेंड, फ्रेम 1 सेंड. कौन था? 0 और 1. तो क्या होगा? 0 सेंड होगा, 1 सेंड होगा. 0 और 1 रिसीवर साइड पे है, तो यहाँ पे आगे क्या हो? 0 और 1 जब रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट वापस चलेगी, तो ऑटोमेटिकली 0 1 विंडो से बाहर निकल जाएगा. रिसीवर साइड पे बात कर रहा हूँ. और 2 और 3 आ जाएगा. करेक्टली डिस्कार्डेड. वाई डिस्कार्डेड? बिकॉज 2 और 3 अभी रिसीव नहीं हुए. रिसीव कौन सा हुआ? 0 और 1. 0 और 1 जब रिसीव हो जाएगा तो विंडो साइज को 2 आगे मूव करवा देंगे. क्लियर? सेकंड डायग्राम देखो, विंडो में क्या है? 0 1 2. 0 फ्रेम सेंड किया, 1 फ्रेम सेंड किया, 2 फ्रेम सेंड किया, 3 फ्रेम सेंड किए. 3 यहां से मूव कर गए, एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिकली यहां से वहां गई होगी, तो वो क्या मूव कर जाएगा? 0 1 2. ये तीनों निकल गए बिकॉज वो रिसीव हो गए, उनकी एक्नॉलेजमेंट चलेगी, आगे मूव कर गए. तो क्या होगा? एनॉर्सली एक्सेप्टेड. ऑटोमेटिकली जब 3 रिसीव हो गए, पुराने चले गए, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको. अब डिफरेंस क्या हुआ? पहली डायग्राम पे क्या? करेक्टली डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड एट द सेंडर्स साइड, बिकॉज सेंडर्स ने 2 फ्रेम सेंड किए अपनी विंडो से. वो 2 फ्रेम थे, फ्रेम 0 फ्रेम 1. वो 2 रिसीव हो गए, उसने अगेन फ्रेम 0 सेंड कर दिया. तो फ्रेम 0 और 1 वो तो विंडो से निकल चुके थे. अगला फ्रेम कौन सा आना था? 2 और 3. लेकिन कौन सा फ्रेम आ गया? 0. तो उसको डिस्कार्ड ही करेगा बिकॉज ऑलरेडी 0 और 1 वहां पे हो चुके हैं. क्लियर? एनी क्वेरी? नहीं समझ आया तो पूछ लो. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? दैट्स गुड. इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आ गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो कंट्रोल. और वन मैसेज इज रिसीव्ड, वेट फॉर अ मिनट. क्लियर, ओके, डन. दैट्स गुड. अगर तुम सभी को सब कुछ समझ आ गया तो ओके. दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो कंट्रोल, and this is all about the today's lecture. Now we only left with the 2 topics in the section B. The first is protocols, that is SLIP slip protocol and PPP protocol, and the second heading is multiplexing. और multiplexing हम लोग कर चुके हैं. Clear? So in the next class we start with the protocols. Clear? इसमें कोई भी पोल नहीं है, and I just give you another 2 minutes. इनको देख लो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लेना, अदरवाइज फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा. आई जस्ट गिव यू द 2 minutes. ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. सबको क्लियर हो गया? सो ओके, देन दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.
Now I'm going to end the class for everyone.